नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में विशेष ब्रीफिंग की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Circumstances is better something which would come out of his own system rather than for me to talk about. Abhishek. Hi, this is Abhishek from CNN News 18. My question is, in the midst of these, especially these two geopolitical tension, one is happening in the Middle East and other between Russia and Ukraine. Did that sentiment was also discussed when the foreign ministers were meeting, when the foreign ministers were discussing? And, yeah, sure. And what was the sense that you could share with us? Okay, sure. Huma. Sir, I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. So, in context of what the Prime Minister talked about, the better trade negotiations and development priorities, I just want to understand, in context of energy security, was the issue talked about India getting oil from Venezuela and Iran because there are sanctions there? And my second question is, there are a lot of trade agreements that are being negotiated with some countries in the region, South American region. Was that also talked about? A friend here. Good evening, sir. My name is Takashi Ishihara from Japanese newspaper Asahi Shimbun. My question is, we have seen the 3 Voice of Global Summits so far, as of today. So how do you evaluate this virtual framework? And is there any possibility to host a physical summit or meeting in the near future? Okay, for this round, I'll end with that, then we can move on. Your question, Gaza and Ukraine, I would say quite a few people raised Gaza. Some did, in both the leaders and foreign ministers mentioned Ukraine, but definitely Gaza, the references to Gaza were much more frequent than to Ukraine. And the thrust of it, I think, was really concern at the casualties, civilian casualties, and the sentiment was that, sort of the situation needs to go back to a ceasefire and to a negotiations. I think that would be a fair characterization of a very broad range of sentiments. On your question about India and oil, look, energy security came up, but we did not specifically raise our energy supplies vis-a-vis any other country. I must also say some countries did bring up sanctions, did mention sanctions, some of them very sharply. So if you ask me, were sanctions mentioned? Yes. Where was energy security, volatile markets discussed? Yes. But nobody actually said country A imports from country B or country C. This kind of discussion was not conducive to that kind of detailing. There was no particular discussion about, trade agreements with Latin America. On the issue of Voice of Global South Summit, look, the last 2 summits held last year were very, very useful in preparing for the G20, for the New Delhi G20 summit, because what it did was it enabled us, when we spoke to the G20, to say, we've consulted 100 and something more countries, and this, after consultation, is their sentiment. So when we said we are speaking for many countries, you have to go through that exercise to establish you are indeed speaking for them. I think the current one, obviously in terms of its timing, it is much more directly relatable to the Summit of the Future. But again, I would say there was a widespread sentiment today articulated by countries saying, look, this is very useful. Somebody in the global south needs to take that initiative.
and we are very happy that India did it. And so there was everybody was for it, but not everybody maybe has the ability and the systems to pull it all together. Definitely the fact that it happened, was widely appreciated, widely commented upon. Nobody specifically spoke about a physical summit. That, virtual versus physical never really came up in any discussion. Rishikesh? Sir, Rishikesh from Press Trust of India, sir. So, has the matter of political interference in domestic affairs by global powers been brought up by the participants, especially leaders or foreign ministers? And is there any expectation from them that PM Modi will raise this particular issue during his visit to US to take part in the summit of future? Next question here. सर मैं सपना साधना ग्रुप से सर डेवलपमेंट्स को लेके समिट में बात की गई. अगर हम बात करते हैं भारत की लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सर आने वाले 5 सालों में आप कहां देखते हैं भारत को? Jackie there. Jackie Martins from BBC. You spoke about the Global South having to play a role in democratizing global institutions, and particularly around UN reform. Is there, this has been discussed for a while, but I think the current international crises means there's an increased call for that reform. Is there a proposal that's being taken forward to the UN of what that reform could look like? Okay. So I go to the first question. मुझे याद नहीं आपने हिंदी में पूछा इंग्लिश में पूछा? हाँ? इंग्लिश में पूछा ना? Okay. So was the issue of political interference raised? Yes. I think at the leaders level, definitely I can remember 1-2 people at least bringing it up at the foreign ministers level as well. So I think for many countries of the global south, this is a concern. The idea here was really more to hear each other out, draw from each other. What all PM would say when an opportunity provides itself. I think that is right now not something which we would comment on. So we will see closer to the time as and when his future engagements are concerned. तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मोदी सरकार की 5 साल की रणनीति को लेकर सवाल किया. विदेश मंत्री ने क्या कुछ उस पर कहा है, आइए आपको सुनाते हैं. मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. सर आने वाले 5 सालों में आप कहां देखते हैं भारत को? जो आपका सवाल जो था कि अगले 5 साल में भारत अपने आप को कैसे देखता है, देखिए हमें तो लगता है कि हम जानते ही हैं कि हमें पूरी अपेक्षा है कि इस दशक में हम जरूर तीसरे नंबर में होंगे. अभी दुनिया में 5वें नंबर में है इकोनॉमिक आर्थिक क्षमता के अनुसार. और हमें ये भी लगता है कि बहुत सारी चीजें जो भारत अभी कर रहा है, जैसे अभी हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, इंडिया स्टैक की बात करते हैं, यूपीआई की बात करते हैं, या अगर आप हमारी जो व्यापार के क्षेत्र में अगर आप भारत का आप प्रभाव देखें, अगर आप आंकड़े भी देखें, तो हमारी ट्रेड बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी और बढ़ेगी, हमारा दुनिया में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, हमारी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी आप कह सकते हैं. अब उनका सवाल था बाद में यूएन की बात करेंगे हम. तो मैं तो जरूर कहूंगा कि हमें पूरा विश्वास है कि ये आने वाले दशक में जो प्रगति पिछले 10 साल में हुई है ये बढ़ता जाएगा, ये कहीं कम तो नहीं होगा. और बहुत सारे क्षेत्रों में लीप फ्रॉगिंग की संभावना है कि भारत जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम, जैसे अभी एआई की लोग बात करते हैं,
तो एआई में बहुत अवसर है कि इसमें अब मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ना थोड़ा और कठिन है। एआई में हो सकता है कि भारत जो है और जल्द प्रगति कर सकता है। तो ये विश्वास जो है, ये आत्मविश्वास भारत में आज जरूर है और हमें लगता है, और मैं ये भी कहूंगा कि जो ग्लोबल साउथ के देश जो हैं उनकी अपेक्षा है भारत के बारे में। उनको लगता है कि ये आज एक देश है जो हम दुनिया में करीब 80 देशों में आजकल हम प्रोजेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में और खासकर अगल बगल में कुछ हो जाए तो भारत जो है एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में मदद करने के लिए जल्दी आ जाता है। तो भारत से जो अपेक्षा जो है वो बढ़ रही है दुनिया में, तो वो भी है। हमारी क्षमता जरूर बढ़ेगी, पर क्षमता के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, अपेक्षा भी बढ़ेगी। और अब खबर वाराणसी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए और उसी के साथ ही काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम में पूजन करते हुए नजर आए। तो वाराणसी की तस्वीरें, काल भैरव मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए, काशी विश्वनाथ धाम भी वो पहुंचे। इसी के साथ ही काल भैरवनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा करते वक्त की तस्वीरें ये हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं। और इसी के साथ ही वो वाराणसी जब पहुंचे तो काल भैरवनाथ मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए। और वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हिंदू अस्पताल में डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ किया। इससे मरीजों को काफी लाभ मिलने वाला है। प्रारंभ होने के अवसर पर आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, यहां के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, मनीष कपूर जी, ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद जी, डॉक्टर डीके सिन्हा जी, ट्रस्टी राम अवतार अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेमका जी और इस मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल से जुड़े हुए ट्रस्ट बोर्ड के सभी अन्य पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में 108 वर्षों से जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित यह मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल आप सबकी सेवा भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं इसके लिए ट्रस्ट बोर्ड के सभी पदाधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पूरे हॉस्पिटल को डायलिसिस की इस नई सुविधा प्रदान करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको प्रदेशवासियों की ओर से, काशीवासियों की ओर से हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करता हूं। मेरे लिए ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, 108 वर्ष से यह चिकित्सालय यहां पर मानवता की सेवा कर रहा है। चैरिटी क्षेत्र में इतने लंबे समय तक कार्य करना सामान्य बात नहीं। एक तो ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए लोग एक बेहतर टीम भाव के साथ काम कर सकें, आपस में एक दूसरे का अहंकार न टकराए और फिर
सही, सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा के अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन यह कार्य फिर भी कनोडिया परिवार ने जो प्रारंभ किया था, इसके बाद राधेश्याम खेमका जी ने उनके आह्वान पर मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल के रूप में आज वर्तमान ट्रस्ट बोर्ड इसको संचालित कर रहा है। मैं इसके लिए ट्रस्ट बोर्ड के सभी पदाधिकारियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक लंबे समय से संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप आप इस कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। याद करिए 1916 काशी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। यह वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का भी वर्ष है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय स्थापत्य का, भारत की ज्ञान परंपरा का, भारत की अभियांत्रिकी का, भारत की आयुष पद्धति का और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का एक मूर्तमान मालवीय जी के सपनों को साकार करने वाला एक ऐसा केंद्र है जो देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह वर्ष है जब गांधी जी काशी में आए थे और बाबा विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किया था, और यही वर्ष है जब यह हिंदू हॉस्पिटल यहां पे प्रारंभ होता है। और फिर उस समय जिस भाव के साथ संस्थापकों ने यह तय किया था कि मैं एक चैरिटी हॉस्पिटल बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में करना था, 108 वर्षों से आप निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं। सचमुच यह अभिनंदनीय है और स्वागत योग्य भी है। 10 वर्ष 10 रुपए में ओपीडी की सेवा प्रारंभ करना बहुत कठिन कार्य है। आपने बोर्ड के अपने आपके बोर्ड ट्रस्ट बोर्ड के जुड़े हुए पदाधिकारियों की सदस्यता और डॉक्टर्स की टीम को अपने साथ जोड़े रखना, पैरामेडिक्स को जोड़ के रखना, यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा, डायलिसिस की सुविधा। आज देखिए आधुनिक खान पान और पॉल्यूशन के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव, केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग और मिलावट जो है, खान पान की सभी वस्तुओं में मिलावट की एक हद से ज्यादा सीमा, यह व्यक्ति के अंदर उसके सभी ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है। किडनी है, हार्ट है, या फिर उसका लंग्स है, ये सभी प्रभावित हो रहे हैं। जवान लड़कों को शुगर हो जा रहा है, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो जा रहे हैं। उन स्थितियों में 500 रुपए में डायलिसिस की सुविधा देना, सचमुच यह चैरिटी का एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं मान सकता हूं। हम लोग यहां पर सभी 71 जनपदों में 75 जनपदों में हम लोगों ने डायलिसिस की सुविधा अपने किसी न किसी हॉस्पिटल में सरकार के स्तर पर प्रारंभ की है। सरकार उसे फ्री में उपचार कराती है, लेकिन बदले में जो उसे संचालित कर रहा है उसे हम 1000 रुपये पर डायलिसिस की उपलब्ध करवाते हैं, और आपने 500 रुपये में सेवा देकर के लोगों को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। एक बड़ा उपकार का कार्य है, और मैं आपसे इस अवसर पर कहूंगा कि हम क्वालिटी को जरूर ध्यान में रखें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्वालिटी, आज के दिन पर पैसा बहुत महत्व नहीं रख रहा है, क्योंकि पैसे की कीमत, आपके पास दानदाताओं की सूची भी है, यहां के सीएमओ, जिलाधिकारी, इन सब से हॉस्पिटल की सेवाओं को पूरी तरह इम्पैनल करवा करके अगर आप भेजेंगे तो हम लोग शासन की सुविधा भी, जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा देते हैं, तो गरीबों के लिए सुविधा भी आपको यहां पे प्राप्त हो सकती है। 5 करोड़
11 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने गोल्डन कार्ड भी प्रदेश के अंदर जारी किए हैं और ये देश के अंदर सर्वाधिक संख्या है, जहां पे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हम गरीबों को उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसलिए आज के दिन पर गरीब के पास उपचार के लिए पैसे की कमी नहीं, लेकिन उपचार की क्वालिटी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सही ढंग से काम कर सके, इसके लिए उनको सही पैकेज देना, सही रुपया देना और लोगों की टीम को जोड़ करके स्वच्छता का एक मानक बनाते हुए सभी प्रकार के उन नियमों का पालन करते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो संस्थापकों और ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए उन महापुरुषों की आत्मा को असीम शांति होगी जो इस चिकित्सालय को मानवीय सेवा का एक उत्कृष्ट केंद्र बनाना चाहते थे। वैसे भी यहां पर तो बाबा विश्वनाथ की कृपा दृष्टि बनी ही है। आरोग्यता के सबसे बड़े देवता बाबा विश्वनाथ ही है। मां गंगा भी बगल में है, मां गंगा का आशीर्वाद भी है और साक्षात विष्णु के रूप में श्री नारायण लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी आपने यहां बनाया हुआ है। मां अन्नपूर्णा भी यहीं पे है। तो आपके पास किस बात की कमी है? सब कुछ आपके साथ में है। क्वालिटी को बनाए रखिए और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, प्रशासन से भी कहूंगा, एम्बुलेंस को आने जाने की व्यवस्था का एक प्रावधान यहां पे किया जाना चाहिए। साथ साथ अन्य जो भी सुविधाएं शासन के स्तर पर होंगी आप उसका प्रतिवेदन देंगे, हम उसको एक समय सीमा के अंदर उसका समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। सरकार इस प्रकार के चैरिटी वर्क को जहां पर एकदम फ्री नहीं लेकिन हां सही हो, सस्ती हो और सबके लिए सुलभ हो, बिना भेदभाव के एक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा हम दे सकें, इसके लिए हमें आज के दिन पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए मारवाड़ी हिंदू हॉस्पिटल 108 वर्षों से कार्य कर रहा है, अत्यंत अभिनंदनीय है। इनके संस्थापकों के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ट्रस्ट बोर्ड के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और इस पूरे हॉस्पिटल को डायलिसिस की नई सुविधा प्रारंभ करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सभी दानदाताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं जो इस प्रकार के कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन किया वो देखने लायक, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य उत्तर जैसा राज्य को प्राप्त कर देगा। अब डॉक्टर की कमी आने वाले 5-7 वर्षों में आप देखेंगे देश के अंदर डॉक्टर की कमी होगी। हर हॉस्पिटल के पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर भी होंगे, पर्याप्त मात्रा में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ भी होंगे। डॉक्टर अपना समय समय पर कंसल्टेशन दे सकता है, हर समय डॉक्टर उपस्थिति में रहते क्योंकि उनकी अपनी व्यस्तता है, उनके अपने पेशेंट है, लेकिन पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को जोड़े और हॉस्पिटल की कड़ी भी इसी प्रकार से बनती है। एक सफाई कर्मचारी से लेकर के वार्ड और दाई से लेकर के पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ से लेकर के वहां के रेजिडेंट डॉक्टर से लेकर के वहां के। तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।